celebrate and sing to the Lord. Praise the Lord. Respected fathers and my dear brothers and sisters in Christ, as you all are aware that we are starting a 9 days novena in honor of our Blessed Mother, followed with the parish feast. Today is the first day of novena, and on behalf of our parish, I welcome Father Ares Futedo, who will be the main celebrant for today. Father Futedo is a parish priest of St. John's Parish in Palam, and we are privileged to have him today. I also welcome all of you, my brothers and sisters, who are present today and also who are viewing us through the YouTube channel. The theme for today is Mary, full of grace. Let us all pray to our Blessed Mother to intercede for all of us and for the success of the 9 days novena and the parish feast which will be followed after the 9 days novena. Today's liturgy and other choirs and other things are being taken by ward number 1, 6 and 14. जय यीशु। आदरणीय पुरोहितगण और क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम 9 दिन का नोवेना प्रार्थना आरंभ कर रहे हैं और इसके समाप्ति पर हम पल्ली पर्व मनाएंगे। आज नोवेना का प्रार्थना का प्रथम दिन है और इस अवसर पर मैं फादर एरिस फुटेडो का भव्य स्वागत करता हूं, जो हमारे लिए मिस्सा चढ़ाएंगे। फादर एरिस फुटेडो सेंट जॉन पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं जो पालम में हैं। आप लोग जो यहाँ सारे उपस्थित लोगों को मैं स्वागत करता हूँ और उन लोगों को भी जो हमारे साथ YouTube के द्वारा जुड़े हैं। आज का विषय मरियम कृपापूर्ण है। हम सब आइए मिलकर अपनी माता मरिया से प्रार्थना करें कि वे हमारे लिए और ये जो 9 दिन का जो नोवेना प्रार्थना है उसके लिए और पल्ली के पर्व के सफलता के लिए प्रार्थना करें। आज का जो नियोजन है वो वार्ड 1, 6 और 14 के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। Today's mass intentions, आज की मिसा के मतलब for the good health of Jarvis by Sweta, as thanksgiving to God for all His love and mercy by Sweta, for a special intention by Angela Lakra and family, for the as thanksgiving on birthday of Joshua Chin by Santi Chin and family, for all the souls of the family by Santi Chin and family, for the complete healing of P. Zachariah Chandi by Sweta, and as thanksgiving by Stanislas and family, thanksgiving and for good health in the family by Anita Masi and family, for a special intention by Raphael and family, for the soul of Anil Washington on his death anniversary by Seema Landale and family, for a special intention by Bridget, and for miraculous healing of Indu Budhiraj by Sanjeev Sharma, and as thanksgiving on Dilya's birthday by Chinapan and family. Along with these intentions, let us pray for all our personal intentions. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, as we have just heard in the verse of the introduction, wherein the theme of today, Mary full of grace, and with today's Mass and today's beginning of the novena,
we will in a special way prepare ourselves for the feast day of Our Lady, whom we acclaim as the patroness of this parish, Our Lady of Graces. May we be blessed through her intercession. And let us be sorry for our failings and offenses, and let us confess together. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on each one of us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant, Lord God, that we, your servants, may rejoice in the unfailing health of mind and body, and through the glorious intercession of Blessed Mary, ever Virgin, may we be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The first reading, a reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. In Christ, according to the purpose of Him who accomplishes all things according to the counsel of His will, we who first hoped in Christ have been destined and appointed to live for the praise of His glory. In Him you also, who have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. This is the word of the Lord. Your response shall be, they are happy, the people whom God has chosen as His own. Ring out your joy to the Lord, O you just, for praise is fitting for loyal hearts. Give thanks to the Lord upon the harp. With a 10-string lute, sing him songs. Your response? They are happy, the people whom God has chosen as His own. For the word of the Lord is faithful, and all His works to be trusted. The Lord loves justice and right, and fills the earth with His love. Your response? They are happy, the people whom God has chosen as His own. They are happy whose God is the Lord, the people He has chosen as His own. From the heavens the Lord looks forth, He sees all the children of men. Your response? They are happy, the people whom God has chosen as His own. Kindly rise for the gospel acclamation. Alleluia, alleluia. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Alleluia. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई
और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज नवीना का प्रथम दिन है और जो विषय लेकर लिया है, मरियम कृपापूर्ण, फुल ऑफ ग्रेस। ग्रेस क्या है? काफ़ी लोगों का नाम ग्रेस भी होते। ग्रेस बिफोर मील्स भी है, प्रार्थना भोजन से पहले। बल्कि फुल ऑफ ग्रेस कब हम कह सकते हैं अ पर्सन इज ग्रेसफुल? अ पर्सन इज ग्रेसफुल व्हेन द पर्सन इज फुल ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर की उपस्थिति से इंसान जब पूर्ण होता है तभी हम उसको फुल ऑफ ग्रेस बोलते हैं। और इन शब्दों से स्वर्गदूत ने मरियम को पुकारा, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, मतलब मरियम ईश्वर की उपस्थिति से भरी हुई है, पूर्ण थी। मैं आपके सामने दो उदाहरण रखूंगा, दो संतों का जीवन का। एक संत जिसको हमने काफ़ी लोगों ने देखा, वो है हमारा स्वर्गीय संत यूहन पौलुस द्वितीय, पोप जॉन पॉल II। वो अपने किताब में आपका खुद जीवन का एक अनुभव लिखता है। जब ये 9 साल थे, स्कूल में गए थे और उसका पिताजी उस समय फौजी में था, माँ उसका साधारण काम करती थी। और वो स्कूल से जब आए, उन्हें देखा जीवन में पहले बार उसका पिताजी रो रहे थे, बाहर बैठकर काफ़ी रो रहे थे। और ये बच्चा यूहन पौलुस ने पिताजी से पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हैं? मैंने पहले बार आपको देखा रोते वक्त, दोपहर का समय था। और उसका पिताजी ने उसको बताया, बेटा आपकी माँ मर गई है, आपकी माँ, योर मदर हैज़ डाइड। और ये बच्चा अंदर जाता है और सही उसकी माँ उधर गुजर गई थी। और क्या करते हैं? सीधा घर से भागते हैं। उसी समय भाग के गए, कहाँ गए? गए गिरजाघर में। और ये गिरजाघर के सामने ऐसी मूर्ति थी माता मरियम की। उधर गए और ये मूर्ति के पैर पकड़ा मदर मैरी का और बताया, माँ आज से मेरी माँ गुजर गई है, आज से आप मेरी माँ होगी। और क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, तभी वो कहते हैं, मुझे इतना धीरज और इतना शक्ति मिली कि पूरा जिंदगी में मैं उसी के सहारा से बढ़ गया हूँ। वही ने मेरा रक्षा करी, वही ने मुझे संभाला, और जब मुसीबत में थी वही मेरे साथ थी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इतना प्यार था हमारा संत पापा यूहन पौलुस द्वितीय को कि उन्हें हमारा माला विनती है 3 तरीका भेद थे, खुशी का, दुख का और महिमा का। उसमें और एक तरीका भेद जोड़े, वो है प्रकाश का भेद। हम जानते हैं हमारा संत पापा संत यूहन पौलुस द्वितीय ने ये जोड़ा है, द मिस्ट्रीज ऑफ द लाइट।
उतना ही नहीं, वो जो माला में हम स्तुति विनती दोहराते हैं उसमें उन्हें और भी जोड़ा, मदर ऑफ द चर्च और मदर ऑफ फैमिलीज, कलीसिया की माँ और परिवारों की माँ। किसमें प्यारे भाइयों बहनों, इतना उसका माता मरियम का प्यार था कि खुद वो कृपा से भरे हुए थे। और हम देखते हैं, सुनते हैं किस तरीका 1980 और 1 साल में जब वो सांत पेतरुस के आंगन में वेटिकन में लोगों को मिलने के लिए अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर दर्शन देते थे, उस समय शाम का समय था। किस तरीका ईरान का ये युवक आगा अली खान सामने आते हैं और संत पापा के ऊपर बंदूक चलाते हैं। इतना नज़दीक से उसको ने इतना गोलियां चलाई संत पापा के ऊपर, और उसके बाद हम देखते हैं संत पापा गिर पड़ा, उसको सीधा हॉस्पिटल में लेकर गए, और जो लगभग 20 से 30 दिन के बाद जो कॉन्शियसनेस में आया, उस समय उन्हें बताया कि किस तरीका उस वक्त मुझे देखने मिला जब वो युवक मेरे ऊपर बंदूक चलाए, एक औरत आकर मुझे गले लगाई और पूरी गोलियां उन्हें औरत ने अपने ऊपर ले ली, और होता माता मरियम। किसमें प्यारे भाइयों बहनों, उसके जीवन में हम देखते हैं, ये सुनते हैं किस तरीका वो भी पूरा कृपा से भरे हुए थे। जो व्यक्ति माला विनती करते हैं, जो व्यक्ति माता मरियम का दर्शन देते हैं, जो व्यक्ति माता मरियम का सहारा आपके साथ लेते हैं, वो कभी हार नहीं होते। इसलिए दूसरे भाग में प्रार्थना का माला विनती में हम दोहराते हैं, ये संत मरिया प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अभी और हमारे मरने के वक्त। कितने लोग आज हम देखते हैं कोई सहारा के बिना मर जाते हैं, कोई लोग रास्ते में हो जाए, कोई लोग सुइसाइड करके, कोई लोग कोई सहारा के बिना रास्ते में इधर उधर मर जाते हैं। बल्कि जो व्यक्ति माता मरियम का सहारा लेता है और ये प्रार्थना बार बार दोहराते हैं, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अभी और हमारे मरने के वक्त, उनके जीवन में कभी अचानक मौत नहीं आएगी। हमेशा आखिरी संस्कार के बिना, प्रथम संस्कार के बिना, विदाउट अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, वो कभी उसके जीवन में मौत नहीं आएगी। दूसरी बात है, दूसरा एक सांत पादरे पियो। सांत पादरे पियो आप लोग जानते होंगे, कापुचिन फादर था, इटली में रहते थे। उसको यीशु मसीह के गाँव पड़े थे, 5 गाय सब पैर में भी, और काफ़ी वो उसको सहाने पड़ता था, काफ़ी उन्हें सहाया। और जीवन में जब थोड़ा उम्र बढ़ रही थी, पता चला कि उसको कैंसर था, स्टोमक कैंसर था। बहुत दुख तकलीफ सहाते थे, बहुत मुश्किल से, इतना कमजोरी ऑलरेडी थी उसके जीवन में, इतना गाय थे, फिर भी बीमारी आकर उसको और कमज़ोर कर दिया। उस समय वो हमेशा उसके जीवन में 3 दिन में 3 बार वो रोजरी करते थे, सुबह शाम दोपहर को। कभी रोजरी उन्हें नहीं छोड़ा, हमेशा माता मरियम के सामने जाकर समय बिताते थे, बातचीत करते थे। और कहते हैं कि जब उसका बहुत दुख तकलीफ सहा रहा था कैंसर से, उसका साथियों ने, उसका जो दूसरे फादर्स थे, उन्हें पूछा कि आपका आखिरी इच्छा क्या है, क्या आप करने चाहते हैं, क्योंकि मौत उसके नज़दीक थी। तो उन्हें बताया कि मैं फातिमा का, माता मरियम का मूर्ति देखने चाहता हूँ। और विशेष करके वो हेलीकॉप्टर से लाए उसके लिए, और मूर्ति उसके कमरे में लेकर गए, उन्हें प्रार्थना की। और वो सोचा कि ये मूर्ति आने से, क्योंकि मेरा इतना प्यार था, इतना संबंध था माता मरियम से, सो पादरे पियो का विश्वास था कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। ये माता मरियम की मूर्ति मेरे शरीर में लगने के बाद मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। तो ये मूर्ति लाए, उसको प्रार्थना भी करी, और कुछ नहीं हुआ। और ये मूर्ति लेने का समय था, और ये मूर्ति हेलीकॉप्टर में से आई थी। वही हेलीकॉप्टर में लेकर वो हेलीकॉप्टर चढ़ा वापस लेने के लिए, उसको लेकर जाने के लिए फातिमा में। और जैसा ये हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ा, तभी पाद पियो देखते रहा अपने कमरे से ये हेलीकॉप्टर को, जो ये फातिमा का, मरियम का मूर्ति लेकर जा रहे थे। और उस समय पादरे पियो ने अपना दिल से आवाज़ उठाया, बहुत गुस्सा सा आवाज़,
कि माँ, मैं आपका इतना सेवक हूँ, अपना इतना प्यार करता हूँ, मैंने सोचा कि आप मुझे टिक करके जाएगी, बल्कि आप आई और चले जा रहे हैं, मुझे ऐसे ही रख कर, ये बीमारी में रख कर। और ये प्रार्थना बोलने के बाद बताते हैं कि जो कैप्टन था, पायलट था, जो हेलीकॉप्टर चढ़ा रही थी, उसका कंट्रोल लूज हो गया। हेलीकॉप्टर ऐसे घूमने लगा, हवा में घूमते रहा और उस समय उसकी शरीर में, पादपियों के शरीर में इतना हिल गई, कहते हैं कि उसी वक्त उसका बीमारी खत्म हो गई, कैंसर से मुक्त हो गया। किसमें प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी काफ़ी लोगों का जीवन हम देखते हैं जो कृपापूर्ण होता है, और कृपापूर्ण माता मरियम थी सबसे प्रथम। इसलिए स्वर्गदूत आकर उसको संदेश देने से पहले उसको कहते हैं, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। किसमें प्यारे भाइयों बहनों, जैसा मैं बता रहा था, कृपा का मतलब है अ पर्सन फिल्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ व्यक्ति। और हम सब जन हमारा बपतिस्मा का दिन ईश्वर की उपस्थिति से भरे हुए हैं। जब पुरोहित हमारे हाथों पे हमारे धर्म माँ बाप के हाथ में, हमारा माँ बाप के हाथ में ये जलती मोमबत्ती देकर कहते हैं कि ईश्वर की कृष्ण की ज्योति ग्रहण कीजिए, कि आप हमेशा ये ज्योति फैलाने के लिए प्रयत्न करें। कितना भी आपके जीवन में मुश्किल आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, ये पवित्र ज्योति के लिए अपना जीवन का बलिदान भी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। और यही बात हम कितना संतों के जीवन में देखते हैं, जिनका इतना विश्वास था। और कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, ये रोजरी सबसे प्रथम वेपन है। काफ़ी हमारे संत पापा काफ़ी कहते हैं रोजरी के बारे में। पियूस दे पंचवा, जिन्होंने रोजरी का डिवोशन चालू किया 15वां सैकड़ा में, वो कहते हैं रोजरी इज अ ट्रेजर ऑफ ग्रेसेस, ये खजाना है कृपा का, जो हम दौरा के प्रभु के उपस्थिति से भर जाते हैं। पायुस द 10th और एक संत पापा कहते हैं, amongst all the Marian prayers, कितना भक्तियां हैं माता मरियम का, बल्कि रोजरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, richest in graces and the one which pleases the most holy Virgin Mary। रोजरी करने के लिए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, कोई पुरोहित का जरूरत नहीं है, कोई भाषा की जरूरत नहीं है, कोई जगह का जरूरत नहीं है। रोजरी कहाँ भी पढ़ सकते हैं, किसी तरीका पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 5 वेद फटाफट करें, कभी समय मिले तो 1 वेद करें, बाद में आपके लंच के समय ऑफिस में थोड़ा टाइम मिले दूसरा और तीसरा वेद करें, शाम के समय जब बॉस किधर गया है 4था वेद करें। कोई समय नहीं है, उसके लिए कहाँ भी कर सकते हैं, कोई भी भाषा में कर सकते हैं, कोई भी जगह में कर सकते हैं। और ये प्रार्थना विशेष करके साधारण लोगों के लिए कलीसिया ने दिया हुआ है। पायुस द 10th वो कहते हैं, रोजरी इज अ पावरफुल वेपन टू पुट द डिमन टू फ्लाइट, शैतान को भगाने के लिए सबसे मुख्य हथियार है जिससे हम शैतान को भगा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथों में रोजरी लेकर जाते हैं, उनके सामने शैतान और शैतान का कब्जा करने का कोई हथियार नहीं होता, क्योंकि ये सबसे प्रथम और मुख्य हथियार है रोजरी। एक बार कृष्ण में प्यारे भाई, एक जवान लड़का को मैंने देखा, सोने का रोजरी पहना था, सोने का रोजरी। तो मैंने बोला, ये रोजरी आपको कौन दिया है? बोलने लगा, मेरा धर्म माँ बाप ने दिया है। तो मैं बोला उससे, तो आप रोजरी पढ़ते हैं? नहीं। तो वो ने, मेरा धर्म माँ ने बोला आपके गले में अच्छा लगता है इसलिए मुझे दिया। नहीं, उसको हम दोहरानी चाहिए, प्रार्थना करने चाहिए। रोजरी गले में डाले और घूमे नहीं, उसको हम प्रथम हर एक टाइम प्रार्थना करते रहनी चाहिए। एड्रियन द 5वां वो एक कहते हैं, ईच बीड ऑफ द रोजरी, एक मानक का रोजरी का इज अ नॉक ऑन द हेड ऑफ द डेवल, एक हैमर जैसा है जिसके द्वारा हम शैतान को मारते हैं। तो जब आप एक एक वेद दोहराते हैं, उतनी बार हम शैतान को मारते रहते हैं। तो आपने एक रोजरी पढ़ा तो एक रोजरी करी तो 50 बार आपने शैतान को मारते रहे। इसी तरीका हम पाप का मौका हमसे हमारे पास से भगाते हैं। पॉल द 6th वो एक संत पापा कहते हैं, रोजरी इज अ कंपेंडियम ऑफ द गॉस्पल, पूरा जो सुसमाचार है वो हमारे रोजरी में लिखा गया है, रोजरी के अंदर है। रोजरी का प्यार आपके पास है, माला बिनती का मरियम का प्यार आपके जीवन में है, तो पूरा बाइबल और पूरा समाचार
आपके जीवन में आप पालते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा एमेरिटस संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं, रोजी इज अ ट्रू गिफ्ट फ्रॉम द हार्ट ऑफ आवर बिलवड मदर। सबसे बड़ा एक तोहफा है जो मरियम हमको देते हैं, ये है रोजरी। जॉन पॉल, स्वर्ग जॉन पॉल जैसा मैंने कहा है, वो कहते हैं, इफ यू प्रे द फैमिली रोजरी ऑल यूनाइटेड यू विल टेस्ट पीस। इफ यू प्रे द फैमिली रोजरी ऑल यूनाइटेड, पूरा परिवार का सब सदस्य मिलकर माला विनती दोहराए तो आपके परिवार में शांति आएगी, आपके परिवार में शांति आएगी। आज कितने परिवारों में हम जांच करें, कितने जन हम समय लेते हैं रोजरी करने के लिए। हो सकता है हम अकेले करते हैं, नहीं, इट इज़ अ फैमिली प्रेयर। अपने बच्चों को जमा करें, बच्चों को साथ में लाए और साथ में मिलकर प्रार्थना करें, साथ में मिलकर। हो सकता है आपको पूरा समय नहीं मिल जाए, 1 और 2 वेद भी दोहराए, बल्कि पूर्वक आराम से उसके ऊपर मनन चिंतन करके। भागने का जरूरत नहीं है, भागे तो उसका अर्थ हम नहीं समझेंगे, बल्कि आराम से आसान से हम करें। ये संत मरिया प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अभी और हमारे मरने के वक्त, कितना अच्छा प्रार्थना। कितने बार हम लोगों ने ये समझकर हमारे अंदर उसके ऊपर मनन चिंतन करके उसका मूल्य हमारे जीवन में अपना के ये प्रार्थना करें तो कितना फ़ायदा हमारे जीवन में होगा। और पहले पार्ट में, ये माला विनती का पहला भाग में, हम माता मरियम का सत्कार करते हैं। हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस, द लॉर्ड इज विथ यू। हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस, और यही आज का विषय है, हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस। मरियम शी इज मैरी फुल ऑफ ग्रेस। और ग्रेस जो मैं कहा रहा था, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति से हम भरने चाहे मरियम की तरीका, तभी मरियम हमारे साथ में रहेगी। जैसा काना विवाह में हम देखते हैं, जब उनका अंगूरी खत्म हुई थी और माता मरियम ने देखा ये परिवार कितना उनका आशा है, कितना उनका इच्छा है कि ये शादी अच्छा तरह हो जाए। अंगूरी खत्म हुई थी और उस समय मरियम जाकर यीशु मसीह से निवेदन करते हैं, बेटा उनका अंगूरी खत्म हुई है। और आपकी माँ का निवेदन सुनकर यीशु मसीह ये पहला चमत्कार करते हैं, पानी से अंगूरी बनाते हैं, दुख से खुशियाँ परिवार में लाते हैं। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, यही खुशियाँ हम हमारे परिवार में अनुभव कर सकेंगे जब हम रोज के दिन विशेष करके प्रेम करके ये माला विनती दोहराए। और जैसा मैं बता रहा था, हमारा संत पापा योहन पौलुस द्वितीय कहते हैं, इफ यू प्रे द रोज फैमिली रोजरी ऑल यूनाइटेड, सब बच्चे सब हो जाए, सबों को जमा करके थोड़ा मोमबत्ती जलाए और भक्ति पूर्वक रोजरी दोहराए, उसके ऊपर मनन चिंतन करें, एक एक वेद हमको क्या कहते हैं, और इस तरीका करें, यू विल टेस्ट पीस, शांति आपके परिवार में आएगी। तो आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज जैसा सबसे प्रथम दिन है ये नवीना का, यही कृपा हमारे जीवन में आने के लिए हम प्रयत्न करें। और कृपा क्या है? कृपा वही है ईश्वर की उपस्थिति। ईश्वर की उपस्थिति मेरे दिल में, ईश्वर की उपस्थिति मेरी आत्माओं में, ईश्वर की उपस्थिति मेरे परिवार में, ईश्वर की उपस्थिति मेरे बच्चों के साथ, ईश्वर की उपस्थिति हमारे पल्ली में, ईश्वर की उपस्थिति मेरे ऑफिस में, ईश्वर की उपस्थिति हर एक इलाके के लोगों के दिलों में। तभी कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम कभी नहीं डर जाएंगे, कभी नहीं हम हारेंगे, क्योंकि खुद संत पापा भी कहते हैं, रोजरी, ईच बीड ऑफ द रोजरी इज अ नॉक ऑन द हेड ऑफ द डेविल। जैसा आप हथौड़ी लेकर मारते हैं, जितने बार आप एक एक प्रणाम मरिया बोलते हैं, एक एक संत मरिया बोलते हैं, उतने बार हम शैतान और पाप को मारते रहते हैं। तभी हम कभी पाप का गुलाम नहीं हो जाएंगे और हम तैयार हो जाएंगे अच्छा मौत के लिए। जैसा हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर हमारे लिए अब हमारे मौत के वक्त, हमारे मरण के समय। कितना लोग आज हम देखते हैं रास्ते में, सड़कों में मर जाते हैं, कोई कृपा के बिना, तैयारी के बिना। और ये प्रार्थना हम दोहराए, माता मरियम खुद कहती हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी मौत नहीं आएगा तैयारी के बिना। मौत कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसा आएगा, कोई को पता नहीं, बल्कि जो व्यक्ति जिसके जीवन में जन्म है उसके जीवन में मौत है। ईश्वर ने हम सबों को एक किताब दिया है, किताब का पहला पान, पहले पेज ईश्वर ने लिखा है वो है हमारा जन्म, और आखिरी पेज लिखा है वो है हमारा मौत। बीच में हम सबों को अपना अपना कहानी
उसमें भरने का है, अपना अपना कहानी उसमें भरने का है। कितने बार मैं अच्छा किया दूसरों के साथ, कितने बार मैं भक्ति का जीवन बिताया, कितने बार मैंने दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए प्रेरण किया। इस महीना विशेष करके मिशन के लिए अर्पित किया गया महीना है। आने वाले इतवार हम मिशन संडे मनाएंगे और सबसे प्रथम मिशनरी था माता मरियम, जो जाकर ईश्वर का वचन फैलाने के लिए अपने जीवन के द्वारा शिष्यों के साथ थी। उनका विश्वास और बढ़ाती थी। उनका विश्वास जब वो हार जाते थे अपने मिशन कार्य में, उनको और ताकत अपना देती थी। और यही मरियम हमारे साथ है। आज हम विशेष करके प्रार्थना करें कि माता मरियम की कृपा जैसा वो उसी कृपा से पूर्ण थी, हम भी पूर्ण होने के लिए प्रयत्न करें। उनकी कृपा हमारे साथ रहे, ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे, ताकि हम भक्तिपूर्वक हमारे जीवन की यात्रा करें और एक दिन स्वर्ग पहुंच जाए, जिसके लिए ईश्वर ने हमको बनाया हुआ है, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन का बलिदान दिया है। On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, oh Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. With this bread and wine we come to this Eucharistic feast. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, oh Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. Pray, brethren, that mine and your sacrifice may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray. Receive, O Lord, we ask the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of Blessed Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to praise, bless, and glorify your name as we begin this novena in honor of Our Lady of Graces. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपने आत्मा के संपद से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु सर्वस्व से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ा जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जीवते, क्रिस्त माए माँ के साथ फिर आएंगे। ये परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सुधि में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। मरियम कृपा से पूर्ण हुई, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा, और जब हमारे जीवन में प्रार्थना होता है, हम कृपा के लिए निवेदन करते हैं, तभी हम ईश्वर की उपस्थिति से पूर्ण हो जाएंगे, जैसा मरियम के जीवन में था। आज हम वही कृपा के लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारा पति में, हमारे बीवियों में, अभी हम पूरा कलीसिया के साथ, तभी ईश्वर का राज और आगे बढ़ जाएगा और ईश्वर के दाखबारे में हम भी जोरदार प्रचारक बनेंगे। ये मन में रखकर हम वही प्रार्थना दोहराए जो यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। ये पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विरक्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तीगन चिता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने तुम संसार के पाप पर लेता है, हम पर दिया। देखिए, ईश्वर का मेमना यीशु मसीह जो आज हम सबों को बुलाते हैं कृपा से पूर्ण होने के लिए, ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे आए कि शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। As we receive this heavenly sacrament, beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Mary, Mother of all graces, Mary, Mother of all graces, Pray for us. Mary, Mother of all graces, Pray for us. O ever Virgin Mother of God, O ever Virgin Mother of God and Mother of all graces, the house of gold in which dwelt your Son, our mediator, Jesus Christ, we humbly beseech thee to grant our request for our salvation and the salvation of the entire world. Mary, powerful and Mother of all graces, Queen of heaven and refuge of sinners, we consecrate ourselves to your immaculate heart. To you we give our homes, our families, and our country. We promise you, O glorious Mother of God and loving Mother of mankind, to devote ourselves wholeheartedly to the service of your blessed Son, our Lord Jesus Christ. May our services hasten and assure, through the sovereignty of your immaculate heart, the coming of the kingdom of your adorable Son, in our own hearts and those of all men, in our country and in all the world, as in heaven, so on earth. Amen. O dear Mother, most sweet Lady of graces, our patroness, listen now to the people gathered here to honor you. Mother of all graces, grant our petitions and accept our sincere thanks. Look at us who prostrate in your presence, wishing to offer you this novena in testimony of our love and in thanksgiving for the innumerable favors we have received from your hands. You are our advocate, and like children we come to present our needs. You are our teacher. Receive, dearest Mother, our praise and listen attentively to our supplication. Amen. O sweetest Mother of all graces, Mother of all patriarchs, keep safe under your motherly mantle our Pope, cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful, that they may reap fruits as per their anointing. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and there. O sweetest Mother of all graces, admirable Mother, who was the foundation of a virtuous Christian family in your little house of Nazareth, we ask you to bless our homes, so that the sanctity and holiness of matrimony and family life will flourish in them. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, now and O sweetest Mother of all graces, Mother of good counsel and seat of wisdom, we command to your intercession leaders, decision makers, lay missionaries, and lay faithful, those specially of our country, that they may be worthy examples to all, led by wisdom, courage, justice, and mercy. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. O sweetest Mother of all graces, pure and immaculate since your conception, we beg you to bless the children and young of our parish,
to choose a way of life, preserving their innocence and increasing their love for purity. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. O sweetest Mother of all graces and health of the sick, we seek your gracious intercession for all the sick, the suffering, the poor, old, infirm, handicapped, all the weakest members of our society, that we may be mindful and of their needs and reach out to them with compassion instead of contempt. Hail Mary, full of grace, is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, O sweetest Mother of all graces, Mother of the Church, we pray for all those present in this novena, that they may realize their true call to live for others, and while doing so, they may experience your miraculous intervention in receiving graces in their life. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and there. O sweetest Mother of all graces, Virgin most prudent, we pray for all the leaders and parents, that they may be able to bring up a spirit-filled generation. Also we pray for all media houses, production houses, advertising agencies and influencers of society, that they may use their talents and resources to bring forth your kingdom on earth. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and O sweetest Mother of all graces, Queen of heaven and earth, we commend to your intercession our ecosystem, being plundered for selfish gain. Grant that we may find ourselves worthy of being keepers of what God entrusted into our care. Hail Mary, full of grace, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God. O sweetest Mother of all graces, most venerable in the Pieta, we beg you to come to our aid at the hour of our death. Especially we commend to you the departed souls in our families, for recourse to your intercession for their salvation. Hail Mary, full of grace, let us now silently present our personal petitions to Our Lady of Graces. Thanksgiving. Accept, O Lord, our thanks for the countless graces received throughout our life. We thank you, O Lord, through Mary, a Mother of graces. Accept, O Lord, our thanks for the gift of life and the gift of faith to this novena family. Accept our thanks. Accept, O Lord, our thanks for the oneness and diversity in our church. Accept, O Lord, our thanks for all the priests we have served in this parish and for bountifully nourishing this parish over the years. Let us now silently thank our Mother of Graces for the favors we have received. Mary, Mother of Graces, from the bottom of our hearts, we thank you for the continuous blessings you pour down on us. From your hands and from your maternal heart we receive each day the graces from our Heavenly Father. You are our defender when we are in danger, our aid when we are in need.
and our hope in the sacrifices proper of our Christian life. Through your Immaculate Heart, we want to sing a song of thanksgiving for all the blessings received. Our Lady of Graces, your praises we sing. You reign now in heaven with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In heaven the blessed your glory proclaim. On earth we your children invoke your sweet name. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our mother, the Church upon earth, and bless Holy Mary, the Lady of our birth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Prayer of blessing, let us pray. O Immaculate Virgin Mother of God and our Mother, by looking at you with open arms, pouring our graces on those who ask you, full of confidence in your powerful intercession, acknowledging our unworthiness because of our many faults, we pray that you may grant us the grace to overcome our sinful nature and our failures at pursuing holiness. Give us the grace to overcome crisis, fears and hopelessness, grace to survive in our prayer life, especially in the midst of adversities, for the greater glory of God, the glorification of your name, and the good of our souls. Inspire in us deep hatred of sin, and give us courage to assert ourselves as true Christians. Make us worthy so that we may obtain the highest grace you bring to us, a holy death that will open to us the gates of heaven. We promise you, O Mother, gratitude and fidelity. You will reign forever in our homes, where we will venerate you as our Lady and Mother by growing in all your virtues. May the Lord Jesus Christ be with you, that he may defend you, within you that he may sustain you, before you that he may lead you, behind you that he may protect you, above you that he may bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let us pray with Mary. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour, for he has looked with favor on the lowliness of his servant. Surely from now on generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me, and holy is his name. His mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the powerful from their thrones and filled up the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, according to the promise he made to our ancestors, to Abraham and to his descendants forever.
Let us now unite with the Christians of all ages in praising Mary and in committing ourselves to her powerful protection. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray, O Lord Jesus Christ, who gave us your Mother Mary, whose wondrous image we venerate as a mother ready to at every moment to help us. Grant that we who call on her help may always enjoy the fruit of your redemption. This we ask through you who live and reign forever and ever. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor and children of Eve. To thee we send up our sight, mourning and weeping in veil of tears. Turn them most gracious. आज का लिटर्जी वार्ड नंबर 1, 6 एंड 14 ने देखभाल किया है और अच्छी तरह से आज का लिटर्जी इनकी तरफ से देखभाल किया गया है। इसके लिए आप लोगों से आग्रह कि एक बार इनके लिए ताली बजा करके इनको धन्यवाद देते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच फादर आयरिस हैं। फादर आयरिस यहाँ हम लोगों का नज़दीक का पारिश है, सेंट जॉन्स चर्च पालम, तो वहाँ के बड़े फादर हैं, पल्ली पुरोहित हैं। और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। जब विद्या ज्योति में थे तो उस समय भी वो बहुत ही फन लविंग था और हमेशा हम लोगों को चुटकुले जोक वगैरह सुनाया करता था। बात यही है कि मैं इससे जूनियर था, लेकिन अभी लगता हूँ मैं सीनियर। फादर जी आप आज हमारे बीच आए और हमारे लिए नौबीना का पहला दिन हम लोगों के लिए प्रार्थना किया। आपके यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ गिव ए बिग हैंड फॉर यू। और आज पहला दिन है और आप लोग बहुत संख्या में आज की इस नौबीना प्रार्थना में भाग लिया, तो अपने आप के लिए ताली बजाइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का लिटर्जी पैरिश यूथ और वीमेन काउंसिल की तरफ से देखभाल किया जाएगा। और कल का जो थीम है वो मेरी मॉडल ऑफ ओबीडियंस